Right, so welcome back everyone. This is the second class of our topo sheet chapter, and we are moving to a very important portion, and that is the portion of heights. In the previous video we have completed the discussion on grids, and in grids we have discussed both the 4-figure and 6-figure grid reference. We also saw it from the notes. Number 2, we discussed the importance of colors. Number 3, we saw the importance of direction. I mean, there were 8 directions. And number 4, we saw 4 types of river या फिर drainage patterns. Now the topics that we have already covered will come for nearly 8 to 10 marks in your exam. So whatever we completed in the first video is not something very small, although concept wise they were very small, but the topics that we have already covered have in the past come for approximately 8 marks in the past examinations. So we have completed a good amount of portions so far, and today also we are going to complete 2 topics. In this video we are going to complete 2 topics. Number 1 topic will be height. ठीक है, पहला चीज we will study about height, and second let us discuss settlement pattern कर लेते हैं. ठीक है, in the first one we discussed about river pattern or drainage pattern. In this one we'll do settlement pattern. ठीक है, तो 4 topics in that class and 2 topics in this class. Combined all these portions will come for nearly 12 to 14 marks. 12 marks, at least 12 marks. That is what I can say. मिनिमम 12 मार्क्स आ सकता है यहाँ से. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर इफ़ यू वांट यू कैन आस्क फॉर द नोट्स फ्रॉम आवर अकेडमी फ़ोन नंबर. दिस इज़ आवर अकेडमी फ़ोन नंबर. प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो इस नंबर पे आते हैं, एंड टाइम लगता है थोड़ा रिप्लाई करने में. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी टोपो शीट रिलेटेड डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. दिस इज़ माई नंबर, सेकेंड वन इज़ माइन, फर्स्ट वाला इज़ अकेडमी का नंबर. सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट इन दिस सब्जेक्ट, नॉट जस्ट इन द चैप्टर, इन दिस सब्जेक्ट. ठीक है, एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ये 4 फिगर नहीं करना है हमें, ये सब हुआ है ना. वी हैव टू गो, यस, height. So we are going to discuss about height. Now pay attention here. I am drawing it in yellow, but आपको actually में ये brown color में नज़र आएगा. ठीक है, when we'll discuss it, this will be in brown color. So you will see certain structures like this in brown color in your topo sheet. ठीक है, तो what is this exactly? Now this is contour lines, very important portion. contour lines के बारे में जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है. पहली चीज हमने क्या डिस्कस की कि इट इज ऑलवेज ब्राउन इन कलर. ना आई एम शोइंग इट इन येलो बिकॉज मेरा बैकग्राउंड डीप है, तो आई कैन नॉट यूज ब्राउन अगेन बिकॉज डीप कलर में, डीप बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लगेगा, बट इट इज ऑलवेज ब्राउन इन कलर. ठीक है, अच्छा, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स हाइट. हाइट कितना? 20 मीटर्स का. सो इट इज ब्राउन इन कलर एंड इट रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ 20 मीटर. मतलब ये एक कॉन्टोर लाइन मैप में जो रहेगा ना, वो दिखाता है कि मैप का वो एरिया 20 मीटर के हाइट पे है. ओके, एंड देयर कैन बी अनदर कॉन्टोर लाइन. नाउ दिस वन रिप्रेजेंट्स अनदर 20 मीटर का हाइट, मतलब ग्राउंड से 40 मीटर्स. ठीक है, दिस इज अनदर 20 मीटर. सो ईच कॉन्टोर लाइन इज 20 मीटर हायर देन द प्रीवियस कॉन्टोर लाइन. सो देयर कैन बी अनदर कॉन्टोर लाइन इनसाइड. सो दिस इज अगेन 20 मीटर हाई. सो ग्राउंड से कितना? 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट इज 60 मीटर्स हाइट. तो कॉन्टोर लाइन्स आर शोन ऑन द टोपो शीट टू रिप्रेजेंट हाइट. ठीक है, कॉन्टोर लाइन्स कैन नेवर मीट, never intersect. I mean it will never intersect except a few examples like cliff हो सकता है, waterfall हो सकता है. So there can be a few examples. Apart from them, example नहीं बोलेंगे, there can be a few exceptions like cliff हो सकता है, waterfall हो सकता है. So there can be a few exceptions, but otherwise contour lines will never intersect. मतलब एक contour line दूसरे contour line को कभी intersect करते हुए नहीं जाएगा. Contour lines will always be a complete सर्कुलर फॉर्म. ठीक है, ये हमेशा एक स्पेरिकल फॉर्म है, एंड इट इज ऑलवेज ब्राउन इन कलर एंड इट शोज हाइट. ठीक है,
ईच कॉन्टोर लाइन इज 20 मीटर हायर देन द प्रीवियस कॉन्टोर लाइन। तो आपके सिलेबस में 20 मीटर ही रहेगा, ठीक है। आप ऐसे याद भी कर सकते हो 20 मीटर, या फिर आपके मैप के नीचे में भी दिया रहता है 20 मीटर, सो यू कैन लर्न इट दैट वे ऑल्सो, ठीक है। अब एक डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंडेक्स कॉन्टोर, ठीक है। इसके बाद नोट्स पे जाएंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इंडेक्स कॉन्टोर क्या होता है ना, उसी टोपो शीट होता है एक शीट ऑफ पेपर, इन दैट शीट ऑफ पेपर देयर विल बी मेनी लाइन्स। तो हर बार देखो ना ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं होता, जैसे आई विल राइट 20 मीटर्स हियर, नेक्स्ट वाले में आई विल राइट 40, नेक्स्ट वाले में आई विल राइट 60, नेक्स्ट वाले में आई विल राइट 80। तो देखो ना लिखना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज मैप में ऐसे ही जगह कम है, ऊपर से बार बार आप लिखोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड देन छोटा लिखने से फिर और खराब दिखेगा। तो व्हाट दे डू, they will be marking every fifth contour line in darker shade। समझ रहे हो, मतलब हर फिफ्थ कॉन्टोर लाइन को ना वो डार्क कर देंगे। तो वो लिखेंगे नहीं कि 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, they will not be writing the numbers, they will be darkening every fifth contour line। तो आपको खुद ही समझ जाना है कि अच्छा फिफ्थ कॉन्टोर लाइन है मतलब ये 100 होगा, नेक्स्ट फिफ्थ कॉन्टोर लाइन है मतलब ये 200 का हाइट होगा। सो दे विल नॉट बी राइटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स कॉन्टोर। इंडेक्स कॉन्टोर का मतलब होता है हर फिफ्थ नंबर वाला कॉन्टोर को थोड़ा डार्क कर दिया जाता है, सो दैट जो रीडर है उस मैप का वो अपने आप समझ जाए कि दिस इज 100 मीटर हाइट, बिकॉज फिफ्थ कॉन्टोर है ना। तो पहला वाला 20, नेक्स्ट 40, देन 60, देन 80 एंड देन 100। तो फिफ्थ वाला जो होगा वो 100 मीटर के हाइट पे होगा। बात समझ में आया? आओ एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सो एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ना, क्या क्या सिलेबस में वी हैव स्टडीड नंबर ए हमने पढ़ रखा है, 4 फिगर 6 फिगर। वी हैव स्टडीड नंबर सी भी कर लिया हमने, कलर्स कर लिया है, कन्वेंशनल सिंबल्स नहीं किया, सिंबल्स लास्ट में। सी वी हैव डन, ई वी हैव डन, ई मतलब जो डायरेक्शंस हम लोग देख रहे थे। जी वी हैव डन ड्रेनेज पैटर्न, जी में हमने ड्रेनेज पैटर्न कर लिया है, बट सेटलमेंट पैटर्न आज इस वीडियो में करेंगे। ओके, हाइट पे आते हैं, ये रहा हाइट। अब देखो यहाँ पे कॉन्टोर्स के बारे में कुछ जनरल रूल्स लिखा है, तो जितना आई हैव डिस्कस दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड वर्टिकल इंटरवल्स का बात हो रहा है, तो आइए समझते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एंड वर्टिकल हाइट्स किसको बोलते हैं। सी, ये जो 20 मीटर का हाइट है ना, 20 मीटर का जो हाइट है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटरवल। 20 मीटर मतलब हर कॉन्टोर इंटरवल लास्ट कॉन्टोर इंटरवल से 20 मीटर अबव है। सो एवरी कॉन्टोर इज 20 मीटर अबव देन द प्रीवियस कॉन्टोर। तो कितना 20 मीटर अबव हाइट का बात हो रहा है, वर्टिकल इंटरवल। और एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेस है और ये एक दूसरा प्लेस है। सो हाइट वाइज देखोगे ना, तो हाइट वाइज देखोगे तो 20 मीटर का हाइट आ रहा है, बट डिस्टेंस भी तो है। आप देखो यहां से हम लोग यहां आ गए, मतलब डिस्टेंस भी तो है ना, एक तो हाइट है एक डिस्टेंस भी तो है। ये डिस्टेंस का बात हो रहा है, डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। स्केल से मेजर करना पड़ेगा आपको, स्केल से मेजर करना पड़ेगा कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर भी आ सकता है मैप में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होगा फिर एक्चुअल में, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो थर्ड वीडियो में सीखेंगे। कन्वर्जन हम लोग थर्ड वीडियो में सीखेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट स्केल, ठीक है। तो अभी आई एम नॉट फोकसिंग मोर मच ऑन VI एंड HE। VI एंड HE जब हम लोग स्केल सीखेंगे ना इन दी थर्ड वीडियो, आपको ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। तो अभी इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है। आई एम स्किपिंग दिस पोर्शन फॉर नाउ। अच्छा, एक आता है जेंटल स्लोप और एक आता है स्टीप स्लोप। जेंटल स्लोप किसको बोलते हैं, जेंटल स्लोप वी कॉल इट व्हेन टू कॉन्टोर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब कॉन्टोर लाइंस एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तो उसको जेंटल स्लोप बोलते हैं। एंड व्हेन द कॉन्टोर लाइंस आर वेरी क्लोजली पैक्ड देन वी कॉल देम स्टीप स्लोप।
ठीक है। तो अगर बहुत क्लोजली पैक्ड है तो स्टीप स्लोप्स, और दूर दूर है तो दैट इज कॉल्ड जेंटल स्लोप, ठीक है। इंडेक्स कॉन्टोर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इंडेक्स कॉन्टोर किसको बोलते हैं? हर फिफ्थ कॉन्टोर को डार्क कर दिया जाएगा सो दैट लिखने का प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज स्पेस का प्रॉब्लम होता है टोपो शीट में। एक ही पेपर में कितना चीज लिखोगे, तो वो लोग क्या करते हैं, डार्क कर देते, तो ऑटोमेटिकली जो रीडर है वो समझ जाएगा कि अच्छा ये डार्क लाइन है, मतलब ये 100 मीटर का हाइट हो गया जमीन से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फॉर्म लाइन। अब फॉर्म लाइन किसको बोलते हैं? फॉर्म लाइन ना कॉन्टोर जैसा ही होता है, बट इंस्टेड ऑफ कंप्लीट लाइन आपको डॉटेड लाइंस मिलेंगे। तो डॉटेड लाइंस क्यों मिलते हैं? देखो बेसिकली ये सब हाइट पता कैसे चलता है, जो सर्वे वाले लोग हैं, हमारे जो सर्वे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सर्वे डिपार्टमेंट वाले लोग जाते हैं और हाइट मेजर करके वो लोग मैप को बनाते हैं। बट it is not always possible to go to an area and calculate the height. Why it is not possible? हर बार जा करके कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू गो एंड कैलकुलेट। वाई? बिकॉज जो जगह है वो हो सकता है वो लैंडस्लाइड वाला एरिया हो, ठीक है, जैसे ही जाएंगे लैंडस्लाइड हो सकता है, सो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हो सकता है, सो इट इज वेरी रिस्की टू गो देयर। सेकेंडली हो सकता है वहाँ वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है कोई जंगल का एरिया हो, वाइल्ड एनिमल हो सकते हैं, तो इट्स नॉट ईजी, या फिर इट इज़ वेरी रिस्की अगेन टू गो टू दोज एरिया। हो सकता है वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ चलते होंगे, ठीक है, या फिर कुछ गलत काम टेररिस्ट या फिर जो क्या बोलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी होते हैं ना, तो उस टाइप के लोग वहाँ होते होंगे। तो देयर आर मेनी रीजंस जिसके वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम गो एंड मेजर दी हाइट। बट हमें पता है कि हाइट है, कितना है दैट वी डोंट नो बिकॉज मेजर नहीं कर पा रहे हैं। सो उस टाइम ना ऐसे फॉर्म लाइंस दिखाते हैं। फॉर्म लाइंस मतलब डॉटेड लाइंस दिखाते हैं। सो डॉटेड लाइंस क्यों दिखाते हैं? जस्ट टू शो कि देखो वहाँ हाइट है, बट कितना हाइट है दैट वी डोंट नो। सो व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट हाइट वी शो इट विद डॉटेड लाइंस, तो उसको बोलते हैं फॉर्म लाइंस। तो यहाँ पे फॉर्म लाइंस दिया हुआ है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट अब देखो स्पॉट हाइट आता है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस आ रहे हैं, इनफैक्ट कॉन्टोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आता है स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट कैसे होता है? एक स्पॉट रहेगा ब्लैक कलर में एंड बगल में हाइट लिखा रहेगा 225। अब एक स्पॉट है एंड बगल में 225 है, इसका मतलब क्या समझेंगे? मैप में जहां भी आपको ऐसा दिखेगा इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर एरिया इज 225 मीटर्स अबव द सी लेवल। 225 मीटर्स अबव द सी लेवल। अगर ऐसे दिया हुआ है तो 100, मतलब दैट पर्टिकुलर एरिया इज 100 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो हाइट बताने के लिए काम आता है। स्पॉट हाइट में एक स्पॉट रहेगा एंड हाइट बताया हुआ रहेगा 375, मतलब दैट एरिया इज 375 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो ये हो गया स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट जैसा ही होता है बेंचमार्क भी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन पहले दिया हुआ है, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन से पहले बेंचमार्क पे आते हैं। बेंचमार्क, सो बेंचमार्क कैसा होता है? स्पॉट हाइट जैसा ही होता है। इंस्टेड ऑफ अ स्पॉट हाइट वहां पे बीएम लिखा रहेगा, इंस्टेड ऑफ अ स्पॉट वहां बीएम लिखा रहेगा एंड देन अगेन वही सब लिखा रहेगा जो पहले लिखा हुआ है। तो मीनिंग वाइज सेम है, सब कुछ सेम है, ओनली द साइन इज डिफरेंट, ओनली द सिंबल इज डिफरेंट। वहां पे स्पॉट देते थे, यहाँ पे बीएम लिख देंगे, मतलब एकदम सेम है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन पे। ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशंस, नाउ व्हाट आर दीज? देखो एक ट्राइंगल रहेगा और ट्राइंगल ना ब्लैक कलर में रहेगा, ऑल ऑफ देम आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर में रहेगा और बगल में ऐसे हाइट बताया हुआ रहेगा। अब ये क्या चीज का हाइट है? ये ना पहाड़ों का हाइट है। दीज आर हाइट्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स का हाइट है। दैट इज वाई वो सिंबल जो है ना वो पीक्स का साइन है, वो एक माउंटेन पीक का साइन है एंड बगल में नंबर लिखा रहेगा। जो भी नंबर लिखा है मतलब उतना का हाइट है। 225 लिखा है तो 225 का हाइट है, 250 लिखा है तो 250 मीटर्स है, 100 लिखा तो 100 मीटर्स है, 45 है तो 45 मीटर्स है। जितना लिखा रहेगा उतना मीटर्स का हाइट है। ट्राइंगल बना हुआ है मतलब ये माउंटेन पीक का हाइट है। स्पॉट बना हुआ है मतलब फुल एरिया का। बेंचमार्क है तो फुल एरिया का। एंड लास्टली वी कम टू रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट, रिलेटिव हाइट में क्या लिखा रहेगा? पहले हाइट लिखा रहेगा एंड देन स्मॉल में आर लिखा रहेगा, मतलब दिस एरिया इज 25 मीटर्स अबव द सरफेस एरिया।
देखो बाकी सब जो थे वो सी लेवल से थे, बाकी जितना हाइट होता है ना वो सी लेवल से मेजर होता है। ये लास्ट वाला ये अकेला है जो सरफेस से मेजर होता है। एवरीथिंग एल्स इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल, ओनली दिस वन इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस लेवल। तो ये हमारा हाइट वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, अच्छा यहाँ पे हाइट के बारे में और भी चीज़ें हैं, ठीक है, बट वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन। इस वीडियो में नहीं करेंगे, विल डिस्कस देम इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी हम लोग आ जाते हैं सेटलमेंट पैटर्न्स पे। तो सेटलमेंट पैटर्न डिस्कस करना है अपने को, सेटलमेंट पैटर्न डिस्कस करना है। तो सेटलमेंट पैटर्न 4 टाइप के होते हैं। सेटलमेंट्स चलो रेड कलर में दिखा देते हैं, इट इज़ शोन इन रेड कलर, तो हम लोग भी रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। पहला बात तो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बना हुआ रहता है, ठीक है, रेड कलर का, इसका मतलब घर है। सेटलमेंट मतलब क्या, घर, लोगों का घर है ये सब, ठीक है। नाउ इफ दीज हाउसेस, इफ दीज बॉक्सेस आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, तो इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएटेड या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट पैटर्न। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड सेटलमेंट पैटर्न। इफ ऑल दीज सेटलमेंट्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, अगर ये सब क्लोजली पैक्ड है तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड सेटलमेंट पैटर्न। अगर ये सब दूर दूर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आई विल अपलोड सम प्रैक्टिस वीडियो ऑल्सो, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स में वो इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। जो नोट्स ये है उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे एंड आई विल अपलोड सम सॉल्यूशंस, तो उसमें आपको अच्छे से मैप में दिखेगा कि ये सब कैसा दिखता है। नाउ अब देखो घर सब दूर दूर हो गया है ना, दूर दूर हो गया। सो व्हेन दी हाउसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट पैटर्न। अच्छा, अब आज के डेट में क्या होता है, एक रोड होता है और रोड के दोनों साइड घर होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट लाइन में घर होते हैं। मतलब आप पहला वाला देखो क्लस्टर्ड था, क्लस्टर्ड में सब घर आसपास थे जैसे तैसे, कोई पैटर्न मतलब अलग से कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, एनी हाउस इज एनीवेयर। डिस्पर्स्ड वाले में भी एनी हाउस इज एनीवेयर, बट यहाँ पे देखो जो हाउसेज है वो सब एक लाइन फॉलो कर रहे हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग अ लाइन। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिनियर सेटलमेंट पैटर्न। लिनियर भी बोल सकते हैं, रिबन भी बोल सकते हैं, मॉडर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड लास्टली एक ऐसा बीच में कोई जगह रहेगा, दिस कैन बी अ स्मॉल पॉन्ड या फिर स्विमिंग पूल टाइप का रहेगा, ठीक है। एंड इसके हर तरफ से घर रहेंगे, तो इसको स्टार लाइक सेटलमेंट पैटर्न भी बोल सकते हैं। आई एम नॉट मेकिंग अ स्क्वायर एनी मोर, बहुत टाइम लग रहा है, तो आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दिस। तो बीच में जगह रहेगा एंड हर तरफ से घर रहेगा, सो इसको स्टार लाइक सेटलमेंट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। स्टार बिकॉज बीच में जगह एंड हर तरफ से इस तरीके से घर निकला हुआ रहेगा, ठीक है, लाइक दिस यू विल हैव हाउस, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्टार टाइप का एक पैटर्न बन रहा है, ऐसा है ना। तो दिस वे जब पैटर्न रहेगा तो उसको स्टार। तो पहला वाला क्या हो गया, व्हेन ऑल द हाउसेज आर क्लोज टू ईच अदर। देखो पहला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फर्स्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत क्लोजली पैक्ड है तो क्लस्टर्ड बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं, दूर दूर है तो डिस्पर्स्ड बोलेंगे, एक लाइन से है तो रिबन बोलेंगे, और जो लास्ट वाला पैटर्न दिख रहा है तो इसको स्टार लाइक पैटर्न बोलेंगे। फर्स्ट 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जो येलो में मार्क किया हुआ है, इट इज़ फॉर माई स्टूडेंट्स। वर्कबुक जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको वर्कबुक दिया गया है, ये येलो वाला आपको पॉज करके कॉपी करना है। अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो आपका कॉपी हुआ भी होगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ से पढ़ लेना है, ओके। एक ऊपर में शॉर्ट नोट दिया हुआ है, शॉर्ट नोट ये दिया हुआ है कि सेटलमेंट जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऑन वन फैक्टर्स, ऑन विच फैक्टर्स डज द सेटलमेंट ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स। मतलब सेटलमेंट का मतलब क्या, लोगों का रहने का तरीका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट पैटर्न। तो सेटलमेंट पैटर्न
कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर्स विल सेटलमेंट ऑफ एनी एरिया डिपेंड। तो देखो आप खुद ही सोचो, चलो नोट से नहीं पढ़ते हैं, जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेटलमेंट कहाँ पे होना चाहिए। विच प्लेसेस विल यू फाइंड सेटलमेंट्स, जहाँ पे रोड नेटवर्क अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल फैसिलिटी अच्छा है, क्रॉप्स होने चाहिए, लोग खाएंगे क्या, जहाँ पे रिवर का फैसिलिटी अच्छा है, मतलब वाटर चाहिए ना, वी नीड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है, अच्छे लोकेलिटी होने चाहिए, बस यही सब बात है। तो इसमें से 3-4 पॉइंट लिख देंगे। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ नौकरी मिल रहा है लोग वहीं जाके रहते हैं, जहाँ रोड रेलवेज ये सब है लोग वहाँ जाके रहते हैं, जहाँ पे पानी का अच्छा फैसिलिटी है लोग वहाँ जाके रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द प्लेसेस वेयर पीपल विल बी स्टेइंग, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करने जा रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्केल, डिस्टेंस, एरिया, स्केल, डिस्टेंस, एरिया, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। इस वीडियो के लिए इतना ही, चले।